السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ بریک کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات۔ درست ہر وقت بر وقت۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے زیر اہتمام دوسری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس 3 روزہ کانفرنس کا آغاز کل سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ صدر مملکت اپنے کلیدی خطاب میں سماجی ترقی، روزگار کے مواقع اور معاشی شرح نمو میں اضافے کے لیے پاکستان کی کوششوں اور اقدامات سے عالمی برادری کو آگاہ کریں گے۔ BISP کے سماجی تحفظ کے لیے کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ صدر مملکت کے قطر کی قیادت اور عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ We have moved from in the right direction from that perspective. Asal jo issue hai na for the exchequer is not the people, it's the subsidy which is provided, aur us subsidy ka jo misuse hua hai, that is the real cost to the exchequer, jisko phir hum istemal kar sakte hain to actually fuel our private sector. Ye growth jo hai ye private sector se aayegi. حکومت کی معاشی ٹیم نے ملکی معیشت کا مجموعی آؤٹ لک عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ معیشت مستحکم، مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں، برآمدات میں 8.2%، GDP کے تناسب سے محصولات میں 1.49% اضافہ۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائلرز کی تعداد 50 لاکھ سے بڑھ کر 59 لاکھ ہو گئی۔ ٹیکسوں کی وصولی 60.2 ارب سے بڑھ کر 69 ارب ہو گئی۔ پائیدار معاشی استحکام کے ہدف کے حصول کے لیے بنیادی اصلاحات ناگزیر۔ وزیر اعظم اصلاحاتی عمل آگے بڑھانے میں قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ معاشی استحکام کی توثیق ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی معاشی ٹیم کے ہمراہ میڈیا بریفنگ۔ حکومت بجلی خرید کی بزنس میں سے باہر آ چکی ہے۔ اس سے بڑا ریفارم پاکستان کی الیکٹریسٹی کی انوائرمنٹ کے اندر نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا۔ گزشتہ 18 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10.5% تک کمی، گردشی قرض میں 700 ارب روپے کی کمی اہم سنگ میل۔ توانائی کے شعبے کے تکنیکی مسائل حل کر کے اربوں روپے کی بچت کی۔ نقصان میں چلنے والے پیداواری یونٹس نیلام کر کے 48 ارب روپے کی بچت کی گئی۔ آٹومیٹک میٹرنگ میں صارفین کو پری پیڈ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ وزیر توانائی اویس لغاری۔ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر حکمرانی کا حق حاصل ہے۔ مسئلہ فلسطین 2 ریاستی حل کے تحت 1967 کی سرحدوں کے مطابق طے ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ امن عمل کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ غزہ کی تعمیر نو، سلامتی اور بحالی کے اقدامات جاری رکھے جائیں۔ غزہ کی سیکیورٹی کے لیے بین الاقوامی فورس کے قیام پر بات چیت ہوئی۔ معاہدے کے ضامن ملکوں نے فلسطینی قیادت سے رابطے پر اتفاق کیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی غزہ پر متعلق عرب اسلامی وزرائے خارجہ رابطہ اجلاس کے بعد استنبول میں نیوز کانفرنس۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا دورہ ترکی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے استنبول میں ملاقات۔ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ غزہ میں پائیدار قیام امن اور بین الاقوامی مسائل پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ Pakistan has successfully re-established itself as a respected voice
in regional and international forums. These achievements reaffirm a simple truth: when guided by clarity of purpose, coherence of policy, and continuity of engagement, Pakistan diplomacy becomes its strongest national asset. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। खित्ते में पाकिस्तान के मौसर किरदार की तौसीक हुई है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज बनकर उभरा है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और चीन सीपैक मंसूबों के जल्द तकमील के लिए पुरज़्म है। कासा 1000 मंसूबा पाकिस्तान के इलाकाई विजन का अक्कास है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज में सेमिनार से खिताब। Behind these successes is the unity of thought and action between the civil and military leadership. Without this unity, none of these successes would have been possible. It is skillful diplomacy before the war, during the war, and after the war, which still continue. हम बयानिए की जंग लड़ रहे हैं। हमारा बयानिया एक भरपूर जवाब की सूरत में है। एक तरफ झूठा बयानिया, दूसरी तरफ वाज़ेह हक़ाइक़ ने दुनिया की आंखें खोल दी। पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन का ज़ामिन। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को दुनिया तस्लीम कर रही है। दुश्मन की तरफ से मुसल्लत करदा जंग में मुसल्लह अफ़वाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के क़यादत में अपने से 4 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त फाश दी। मारकाए हक में पाक फ़िज़ाइया का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार। अफगानिस्तान के साथ हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल बरवक्त और तेज था। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे का हमारा एक नुकाती एजेंडा था। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। गजा आर्म फौज से मुतालिक फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 6200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 1667 खारजी दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में 128 अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। मरियम नवाज की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। गूगल फॉर एजुकेशन पंजाब के सरकारी स्कूल्स के 2000 से ज़्यादा असातिज़ा को तरबियत दे चुकी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास 6 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में होगा। PPP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। सदर ममलिकत ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तलब कर लिए। सेनेट इजलास मंगल की शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली का इजलास बुध की दोपहर 5 बजे तलब। नोटिफिकेशन जारी। शिमाली अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का जल्जला, 20 अफराद जाँ बहक, 150 से जायद जख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज मजार शरीफ और गहराई 28 किलोमीटर थी। जल्जले से कई इमारतें मुनहदिम। बलख और समनगान सूबे सबसे ज्यादा मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। दूर दराज इलाकों तक पहुंचने में मुश्किलात के बाइस हलाकतों में इजाफे का खदशा। सदर आसिफ अली जरदारी का अफगानिस्तान में जल्जले से कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मकबूजा कश्मीर में फैशिस्ट मोदी की हिंदुत्व नजरिया मुसल्लत करने की एक और साजिश। डोडा के तमाम स्कूल्स में वंदे मातरम पढ़ना लाजमी करार। उलमाए दीन, सियासी तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने इक़दाम को मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। भारतीय पुलिस ने बारामूला से 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जाबराना इक़दाम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस।
सिहोनी फौज ने गजा अमन मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी। जंग बंदी के बाद से जारी इसराइली हमलों में अब तक 236 मजलूम फलस्तीनी शहीद हो चुके। मगरबी किनारे और खान यूनिस में ताज़ा हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। हमास ने गजा अमन मुआहदे के तहत 3 मजीद यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। गजा में दाखिल होने वाली इमदाद नाकाफी और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। 24 लाख अफराद भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। कल से मुल्क के मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब और खिताब पोठोहार में चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। बारिश से दर्जा हरारत में नुमायां कमी होगी। बारिश के दौरान धुंध और स्मॉग में कमी, जबकि बारिश के बाद स्मॉग बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात। 17 साल बाद फैसलाबाद में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का कल से आगाज। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई, कौमी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। मुकाबला दिन 3 बजे शुरू होगा। शाहीन आफरीदी पहली मर्तबा वनडे इंटरनेशनल में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। मेरे लिए ऑनर की बात है पाकिस्तान टीम को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट करना, और अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा फोकस उस पर है कि हमारी जो वनडे क्रिकेट है उसको कैसे बेहतर करना है। एज अ टीम हम काफ़ी उम्मीद है अच्छी परफॉर्मेंस के, और बाबर की लास्ट इनिंग्स थी उससे उसको काफ़ी हेल्प मिली होगी। वो पाकिस्तान के लिए 4-5 सालों से वही परफॉर्मेंस करता आ रहा है, टॉप स्कोरर है T20 का भी, वनडे का भी। कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी एजाज, जिम्मेदारी बेहतरीन अंदाज में निभाऊंगा। जनूबी अफ्रीका अच्छी टीम है, पुरुम्मीद हूं कि T20 सीरीज की तरह वनडे सीरीज में भी शानदार खेल पेश करेंगे। कप्तान पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बहरीन के शाही खानदान के मोअज़्ज़िज़ रुकन, एशियन फुटबॉल फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा कल से पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा को स्टेट गेस्ट का दर्जा, आला सिविल और उसकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। फुटबॉल के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नौजवानों के लिए खेलों के मौक़ों में फ़रोग़ और तौसीअ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इटली के यानिक सिनर ने पहली मर्तबा पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कनाडा के फ्लेक्सो एलियासिम को 6-4 और 7-6 से शिकस्त। कामयाबी के बाद यानिक सिनर टेनिस की आलमी दर्जा बंदी में पहले नंबर पर आ गए। Sealed in style. Paris for the first time. हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की ज़ेर एहतमाम दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस कल से दोहा में शुरू होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद बसर अब्बास। पायदार तरक्की उम्मीद की तजदीद के मौजू पर होने वाली आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान और मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी साज, माहिरीन, आलमी इदारे और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे।
کانفرنس کا مقصد غربت میں کمی، صحت اور تعلیم کا فروغ اور مساوی ترقی کے مواقع کی فراہمی ہے۔ صدر آصف علی زرداری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اپنے کلیدی خطاب میں صدر آصف علی زرداری سماجی ترقی، روزگار کے مواقع اور معاشی شرح نمو میں اضافے کے لیے پاکستان کی کوششوں اور اقدامات سے عالمی برادری کو آگاہ کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سماجی تحفظ، غربت میں کمی اور کمزور طبقوں کے استحکام میں BISP کے کردار پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ صدر مملکت دوحہ پولیٹیکل ڈکلریشن اور عالمی ترقیاتی وعدوں سے ہم آہنگ پاکستان کے منصوبوں کو بھی دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے۔ وہ SDG سٹملیس، قرض برائے سماجی و ماحولیاتی تبدیلیوں اور چین کے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جیسے اقدامات کے ذریعے مالی وسائل بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیں گے۔ کانفرنس کے موقع پر صدر آصف علی زرداری کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ صدر مملکت کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اور عراق کے صدر عبداللطیف جمال راشد سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے کانفرنس میں شریک بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان اور نمائندے بھی ملاقات کریں گے۔ دوحہ میں ہونے والی کانفرنس میں اس عہد کی تجدید کی جائے گی کہ تمام دنیا کے لیے تعلیم، صحت اور سماجی ترقی کے حوالے سے مساوی حقوق کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، دوحہ، قطر۔ ملک کی معیشت مستحکم، عالمی ریٹنگ ایجنسیز بھی پاکستان کے معاشی استحکام کے معترف ہیں۔ حکومتی ٹیم نے معیشت کا مجموعی آؤٹ لک عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب یہ کہتے ہیں کہ معاشی اصلاحات اکنامک روڈ میپ کا اہم حصہ ہیں۔ عماد اوان کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں حکومت کی معاشی ٹیم کے ہمراہ پریس بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ میکرو اکنامک بہتری سے بہت فرق پڑا ہے۔ غیر ملکی ریٹنگ ایجنسیوں کی پاکستان کی معیشت سے متعلق انڈیکس بہتر ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری سمت درست ہے۔ We have moved from in the right direction from that perspective. اصل جو ایشو ہے نا for the exchequer is not the people. It's the subsidy which is provided, اور اس سبسڈی کا جو مس یوز ہوا ہے that is the real cost to the exchequer، جس کو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں to actually fuel our private sector۔ یہ گروتھ جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گی۔ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں، خواتین و حضرات، ان کو ایکو سسٹم جو یہ منسٹر آئی ٹی کر رہی ہیں in terms of what we are doing, in terms of the freelancers, in terms of taking our IT discussion, AI discussion forward, that is the future of Pakistan۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس ٹو GDP میں صرف سروسز میں ہماری 8% گروتھ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ NFC ایوارڈ کے لیے اجلاس اس ماہ کے آخر میں بلایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے FBR میں ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر FBR کے اندر ٹیکسیشن افسران کی اپ لفٹ پر کام جاری ہے۔ انہوں نے ریونیو میں اضافے کو نوجوان افسران کی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ 18% اس سال جو ہے وہ نمبر آف فائلرز میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ پرسنٹیج میں دیکھیں تو وہ جو پچھلے سال پے کیا اس کی بیس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ 14% ان مشکل حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سگنیفیکنٹ انکریز ہے۔ سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسل نے آخر میں محکمے کی چیدہ اصلاحات پر روشنی ڈالی، جس سے ٹیکس ٹو GDP خسارہ کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ ہم نے اپنی انویسٹر بیس کو براڈن کیا ہے۔ We have launched new instruments. Zero coupon is one such example. ہم نے کوئی پچھلے ایک سال میں 1.3 ٹریلین کی زیرو کوپونز ایشو کیے ہیں، جس سے it has actually saved us a lot of interest expense and thus budgetary expenditure and ultimately the fiscal deficit۔ وزیر خزانہ اور ان کی معاشی ٹیم کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ کم ہونے سے چھوٹے سرمایہ کاروں اور نئے کاروبار کرنے والے طبقے کو فائدہ پہنچا ہے۔ اصلاحات کے ایجنڈے میں قومی مفاد کو مقدم رکھا گیا ہے تاکہ رائٹ سائزنگ کے نتیجے میں مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ عماد امان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معیشت کی بہتری کے حوالے سے مشترکہ پریس کانفرنس میں وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ ٹیکس نظام، توانائی اور دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ ہم تیزی سے کیش لیس اکانومی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر عمر ملک۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ توانائی کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اب بجلی نہیں خریدے گی، وہ اس کاروبار سے باہر آ چکی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مسائل کے باوجود گزشتہ 18 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10.5 روپے فی یونٹ تک کمی کی ہے۔ ہم نے انہی بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پچھلے 18 مہینے کے اندر
बिजली की कीमत को तकरीबन 10 से 10.5 रुपए फी यूनिट का के अंदर हमने उसकी रिडक्शन की। आइंदा हुकूमत पाकिस्तान बिजली खरीद नहीं कर सकेगी, लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ बिजली फरोख्त और ख़रीदनी पड़ेगी, जिससे आपको बेहतरीन कीमतें इन द फ्यूचर मिलेंगी। अब हुकूमत बिजली खरीद की बिजनेस में से बाहर आ चुकी है। इससे बड़ा रिफॉर्म पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की एनवायरनमेंट के अंदर ना आ सकता है ना आएगा। आईटी की वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी की जानिब बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन के अमल में कौमी सतह पर तमाम इदारों को हम आहंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी और वक्त की भी बचत होगी। एक तरफ तो हमारी डिजिटल एक्सपोर्ट्स हैं, मगर जो डिजिटाइजेशन का इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, उसको देखते हुए हमने देखा कि हमने अगले 4 सालों में $10 अरब का वो इम्पैक्ट कैसे लेके आना है। उसके लिए इस साल जनवरी में डिजिटल नेशन पाकिस्तान का एक्ट पास किया गया, जिसमें पूरा डिजिटल नेशन पाकिस्तान का रोड मैप दिया गया, जिसके 3 पहलू हैं: डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट। तो हुकूमत के प्रोसेसेस को कैसे डिजिटाइज़ करना है, मईशत को कैसे करना है, और हमने अपने मुआशरे में डिजिटाइजेशन में किस तरह से आगे बढ़ना है। रेवोल्यूशन आएगी एक डिजिटल इकोनॉमी की, जैसे जैसे अडॉप्शन होगी तो हम अपना टैक्स नेट बेहतर होता भी देखेंगे और ब्रॉड होता भी देखेंगे, और तमाम लोग जो हैं उनके लिए सबसे इसमें क्रिटिकल बात यह है कि हमारा जो आम शहरी है उसके लिए आसानी पैदा होगी। निजकारी के बारे में वजीर आजम के मुशीर मोहम्मद अली ने कहा कि निजकारी से मुतल्लिक हुकूमत अपने अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। निजकारी का मकसद इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना और आवाम को बेहतर खिदमात की फराहमी है। प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 2024 में जो बना था 2024 से 29, उसमें 24 एंटिटीज हमें दी गई, लेकिन इन 24 एंटिटीज पे जो काम शुरू हुआ तो पहले हमने इसके ऊपर 3 फेजेस बनाए थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। आज की तारीख में हमने सारे फेजेस खत्म कर दिए हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन एज मेनी ट्रांजैक्शंस एज वी कैन पॉसिबली। फर्स्ट पेमेंट बैंक 5 अरब की वैल्यूएशन पे बेची। प्राइवेटाइजेशन में खाली एसेट बेच देना और पैसे ले लेना, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। यू हैव टू सेल इट टू द राइट बायर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि माशाल्लाह हमने फर्स्ट पेमेंट बैंक में अचीव किया। राइट साइजिंग के बारे में वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर सुलेमान अहमद ने कहा कि हुकूमत के हजम में कमी करना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से तेजी से काम जारी है। वो इदारे जहाँ अच्छा काम हो रहा है और उसके रिटर्न्स हैं वो उसी तरह चलते रहें, और जहाँ पे कुछ एक्सेस है या वेस्ट है उनको हम आइडेंटिफाई करके तो राइट साइज करें। हम 5-5 मिनिस्ट्री के ग्रुप्स में चलते हैं, 4 ग्रुप्स इसमें से गुजर चुके हैं, 20 मिनिस्ट्रीज। बकिया 19 मिनिस्ट्रीज में से 9 मिनिस्ट्रीज के ऊपर इस वक्त वो अंडर प्रोसेस हैं। वो 78 डिपार्टमेंट्स हैं 140 में से, वो कमिटी रिकमेंडेशन की स्टेज के ऊपर हैं, कैबिनेट को पास होने वाले हैं। जब कैबिनेट उनको देख लेगी और अप्रूव कर देगी तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में चले जाएंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिविल और अस्करी क़यादत की हम आहंगी से पाकिस्तान ने हर मैदान में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। अगला हदफ माशी इस्तेहकाम और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ है। वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अताउल्लाह तारट की इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब की तफसील शेयर कर रहे हैं हुसैन रजा। सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई है। The Prime Minister's recent engagements with Saudi leadership have reinvigorated strategic cooperation and opened pathways for multi-billion-dollar investment. The renewed momentum in the Saudi-Pak Supreme Coordination Council stands as a hallmark of this strengthened partnership. Our relations with United Arab Emirates and Qatar have also deepened remarkably. वजीर दिफा ने कहा कि सिविल और अस्करी क़यादत की हम आहंगी के बायस मुल्क हर मैदान में कामयाबियां हासिल कर रहा है। मौसर सफारतकारी के जरिए मुआशी शराकतदारी का फ़रोग़ वजीर आज़म का विजन है। Pakistan has successfully re-established itself as a respected voice in regional and international forums. These achievements reaffirm a simple truth: when guided by clarity of purpose, coherence of policy, and continuity of engagement, Pakistan diplomacy becomes its strongest national asset.
सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्ला तारड़ ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी के बाद हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हुआ है। हम बयानिया की जंग लड़ रहे हैं, हमारा बयानिया एक भरपूर जवाब की सूरत में है। उन्होंने कहा कि एक तरफ झूठा बयानिया और दूसरी तरफ वाज़े हकायक ने भारत के बारे में दुनिया की आंखें खोल दी। Behind these successes is the unity of thought and action between the civil and military leadership. Without this unity, none of these successes would have been possible. It is skillful diplomacy before the war, during the war, and after the war, which still continue. Where we celebrate Pakistan's diplomatic success, we must also realize that India has suffered diplomatic failure. The way forward now is to engage the global community, to invest in Pakistan, and to open Pakistan's ports to Central Asia. वजीर इत्तलात ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत हमेशा की तरह जारहियत का मुर्तकिब रहा है, मगर पाकिस्तान ने हर बार मौसर और जिम्मेदाराना जवाब दिया है। We were never desirous of a war, but when war was imposed upon us, our armed forces gave a befitting response. The whole nation came together behind our valiant armed forces, and the armed forces led by Field Marshal Sayyid Asim Munir defeated an enemy 4 times as big as Pakistan. The Pakistani media gave a message of hope to the nation and very, very responsible reporting. सेमिनार में दीगर मुकर्ररीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमन, ताउन और इस्तेहकाम के असूलों पर मबनी है। हमारी सफारतकारी आइंदा भी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करती रहेगी। हुसैन रज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्तांबुल में इलाकाई इस्तेहकाम के लिए गाजा में जंगबंदी की सूरत हाल पर गौर ख़ौस के लिए अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि फ़लस्तीन पर हुक्मरानी का हक सिर्फ फ़लस्तीनियों का है। हम 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की बात कर रहे हैं, जो कि आलमी क़वानीन की जानिब से मंजूर शुदा है। हाकान फिदान ने कहा कि गाजा में इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जंगबंदी को बरकरार रहना चाहिए। गाजा में दोबारा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इसराइल पर आलमी दबाव बरकरार रहना चाहिए। हाकान फिदान ने बताया कि गाजा के लिए इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स के क़याम पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से मुलाकात की। इस मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान और गाजा अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले के हल पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने गाजा पर वज़ारती इजलास के इनेकाद पर तुर्की की मेज़बानी को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस में 3 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खारजी दहशतगर्दों के ग्रुप को मौसर तरीके से निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 2 खारजी मारे गए, जिनमें से एक खारजी दहशतगर्द की शनाख्त अफगान शहरी कासिम के तौर पर हुई। ये खारजी दहशतगर्द कासिम अफगान बॉर्डर पुलिस में फ़राइज़ अंजाम देता था। टांक में की गई एक और कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला खारजी दहशतगर्द इकरामुद्दीन उर्फ अबू दजाना मारा गया। अबू दजाना भी अफगान शहरी था। अफगान खारजी दहशतगर्दों की हलाकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी शामिल हैं। पाकिस्तान बारहा अफगान तालिबान रजीम से अपनी सरहद की तरफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने की दरख्वास्त करता रहा है और तवक्को की जाती है कि अफगान तालिबान रजीम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। अफगान सरजमीन को खारिज के इस्तेमाल और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म और साबित कदम हैं। बैरूनी मुल्कों की सरपरस्ती याफ्ता और मुआवनत याफ्ता दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म का इजहार किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान का रद्दअमल बर वक्त और तेज था, दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात का एक नुकाती एजेंडा था। एक सवाल पर मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने बताया कि मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 6200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन में 1667 खारजी दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में 128 अफगान बाशिंदे शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं। DG
DGISPR نے مزید کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اپنی سرحدوں اور عوام کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. پاکستان پالیسی بنانے میں خود مختار ہے. ایک اور سوال پر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ افغانستان میں عبوری حکومت ہے جسے عوام اور سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل نہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی ترقی کے لیے ایسی حکومت ضروری ہے جسے خواتین سمیت تمام طبقات کی حمایت حاصل ہو. DGISPR نے کہا کہ افغانستان میں منشیات اسمگلرز کی افغان سیاست میں مداخلت ہے اور افغانستان سے بڑے پیمانے پر منشیات پاکستان اسمگل کی جا رہی ہیں. ایک اور سوال پر DGISPR کا کہنا تھا کہ غازہ آرم فوج سے متعلق فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گوگل فار ایجوکیشن اور ٹیک ویلی کے وفد نے گلوبل ڈائریکٹر کیون کالس کی قیادت میں لاہور میں ملاقات کی. وفد نے پنجاب میں گوگل کروم بک فیکٹری لگانے کی پیشکش کی. وزیر اعلیٰ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے گوگل فار ایجوکیشن کی معاونت کو سراہا اور گوگل کروم بک فیکٹری کے قیام کے لیے بھرپور معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہب بنانا ہمارا عزم ہے. گوگل فار ایجوکیشن کے وفد نے ایجوکیشن خاص طور پر بچوں کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جدید تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کو متاثر کن قرار دیا. وفد نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ گوگل کروم بک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول کٹ، کینوا، AI جیمنی اور انگلش لرننگ کے لیے ریڈ الانگ سافٹ ویئر میسر ہوگا. گوگل فار ایجوکیشن اب تک پنجاب میں سرکاری اسکولز کے 2000 سے زیادہ اساتذہ کو ٹریننگ دے چکا ہے اور مزید اساتذہ کی IT ٹریننگ پر کام جاری ہے. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ساحلی پٹی ملک کی معیشت کے استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. کراچی میں دوسری پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اور کانفرنس کی تفصیل شیئر کر رہی ہیں نورین آصف. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ دنیا کی خوشحالی سمندری وسائل پر منحصر ہے. سمندر معاشی ترقی کے لیے بہترین ذریعہ ہے. پاکستان میں کاروباری جدت اور سرمایہ کاری کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ اس فورم کے ذریعے ہم تعاون بڑھا کر ایک دوسرے کے جدید طریقوں اور تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں. According to UNCTAD, over 80% of global trade by volume and 70% by value is carried by sea. The global blue economy today contributes more than $2.5 trillion annually to world GDP and sustains over 350 million jobs across shippings, ports, fisheries, energy, coastal tourism and emerging marine technologies. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے وزیر صالح بن نصیر الجسیر نے کہا کہ سعودی عرب تجارت کے فروغ کے لیے پاکستان سمیت مختلف ممالک کی بندرگاہوں کے درمیان شراکت داری کے طریقہ کار کو ہموار کرنا چاہتا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا کہ یہ پائمیک پاکستان کی بلو اکانومی روڈ میپ کو آگے بڑھانے میں اہمیت رکھتی ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر احسن اقبال نے دوسری پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم نمائش اور کانفرنس کا باضابطہ افتتاح کیا. اس موقع پر وفاقی وزراء علیم احمد خان کیسر شیخ، گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سمیت چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی شریک ہوئے. بعد میں احسن اقبال نے نمائش کے مختلف سٹالز کا دورہ کیا. 4 روز تک جاری رہنے والی اس نمائش میں پاکستان سمیت 45 ممالک کے نمائندے اور 178 نمائش کنندگان شرکت کر رہے ہیں. یہ نمائش نہ صرف ملک کے سمندری وسائل اور بلو اکانومی کے فروغ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے بلکہ اس سے جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے، کاروباری تعاون اور ملک کی ترقی کی نئی راہیں بھی کھلیں گی. نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ گرین لائن فیز 2 کے تینوں سٹیشنز کو تاریخی بنایا جائے گا. وہ کراچی میں گرین لائن منصوبے کے دورے اور جامع رشید میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتائیں گے سید جہانگیر علی. کراچی میں گرین لائن کے منصوبے کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ گرین لائن منصوبہ کا پہلا مرحلہ 29 ارب روپے میں مکمل ہوا. دوسرا مرحلہ تاحال زیر تعمیر ہے جو 1 سال کے اندر مکمل ہوگا. کراچی کے لیے جناب نواز شریف صاحب نے گرین لائن منصوبے کا تحفہ دیا تھا. اس کا جو فیز 2 ہے وہ ابھی ادھورا تھا، جو 1.8 کلومیٹر پہ مشتمل ہے اور تقریباً 5.5 ارب روپے اس کی لاگت ہے.
और इसको टेंडर आउट किया है और अब इस पर दोबारा काम का आगाज़ हुआ। तो उस वक्त हमें मालूम हुआ कि कराची बल्दिया को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से उन्होंने काम को रुकवाया। आज मेरी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी ने कहा कि हम सक्करता हैदराबाद मोटरवे को अपने दौर में मुकम्मल करेंगे और ये तरजीही मनसूबा है। कोयटा चमंदा कराची शाहरा को भी एक्सप्रेस वे में तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि K4 का मनसूबा वफाक का नहीं सूबाई हुकूमत का था। K4 पर 140 अरब रुपए लगाने के बावजूद इसकी तकसीम का मरहला मुकम्मल होना है। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की तकसीम के लिए लाइनें बिछाने का काम सिंध हुकूमत करेगी। कराची में जामिद उल रशीद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम उम्मा को इल्म के उसूल पर तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए इल्म का उसूल नागुज़ीर है और पढ़े लिखे बासलाहियत लोग ही मुआशरे में बेहतरी ला सकते हैं। कराची के आयशा भवानी स्कूल में खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि नई इजादात होनी चाहिए ताकि हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल किए बगैर मुल्क और कौम तरक्की की मंजिल पर नहीं पहुँच सकती। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर ममलिकत ने सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। सेनेट का इजलास कल शाम 5 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को बरोज बुध दोपहर 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली का 5 नवंबर को होने वाला इजलास मौजूदा कौमी असम्बली का 21वां इजलास होगा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। 100 इंडेक्स 1171 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,62,803 पर बंद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं जमीर अब्बास। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2200 के करीब पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट 1,63,000 की हद अबूर कर गई। हुकूमत की जानिब से मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए 3 साला फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसके तहत 3 साल के अंदर मुल्की एक्सपोर्ट्स $50 बिलियन जबकि तरसीलात ज़र $44 अरब तक ले जाने का मंसूबा बनाया गया है। गवर्नमेंट ने जो नया 3 साला मंसूबा पेश किया है इकोनॉमिक रिवाइवल का, उसको वेलकम कहा जा रहा है। तो ये काफी मुस्बत इकदाम हैं जिसको सरमायाकार ने वेलकम किया है, खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स में, ऑटो सेक्टर के अंदर, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स और सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने में आई। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस हफ्ते का आगाज हुआ है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 486 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 262 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 176 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 48 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज मार्केट में 47 अरब 58 करोड़ रुपए की लागत के 4,36,000 सौदे हुए, जिसमें 95 करोड़ के करीब के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और रिफाइनरीज की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। SIFC की जामे हिकमत अमली के मुस्बत असरात सनत, सियाहत और निजकारी में नुमाया कामयाबियां हासिल हो रही हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की मारूफ इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी मुकम्मल कर ली है। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड की निजकारी से किसानों को जदीद, तेज, शफाफ और मौसर माली खिदमात की फरहमी मुमकिन हो सकेगी। BYD का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए मुकामी कंपनी से इश्तराक से EV चार्जिंग स्टेशंस के कयाम की तरफ सरमायाकारों के रुझान में इजाफा हो रहा है। रवां साल ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के तहत ग्रीन पार्क लगून गुडानी और ग्रीन पार्क रिवर फ्रंट नारान का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। SIFC की वजह से पाकिस्तान में माहौल दो सयाहत को नई जहत, ग्रीन टूरिज्म मंसूबों की रफ्तार में नुमाया तेजी हो रही है। बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की, जहां काबिज हुकाम ने RSS के हिंदुत्वा नजरिए को मुसल्लत करने की एक और मजमूम कोशिश के तहत जिला डोडा के तमाम स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ना लाजमी करार दे दिया है। KMS के मुताबिक डोडा के चीफ एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में स्कूलों के सरबराहों को हिदायत की गई है कि वो सुबह की मजलिसों में तलबा के लिए वंदे मातरम पढ़ना यकीनी बनाएं। उलमाए दीन, सियासी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स ने इस इकदाम को मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर बराह रास्त हमला करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक और मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने हुक्मनामे की मजम्मत करते हुए इसे जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती आबादी पर RSS के हिंदुत्व नजरिए को मुसल्लत करने की दानिस्ता कोशिश करार दिया। उन्होंने खबरदार किया कि इस तरह के जाबराना इक़दामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय पुलिस ने जिला बारामूला से 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जिनकी शनाख्त अवैस फारूक और एहसन फयाज के नामों से हुई है। काले कवानीन के तहत गिरफ्तारियों का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में इख्तिलाफ राय को दबाना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू की एक अदालत में दरख्वास्त दायर की है कि भारत के दूर दराज जिलों में नजरबंद कश्मीरी सियासी कैदियों को वापस वादी कश्मीर मुंतकिल किया जाए।
خبر دیں گے آپ کو شمالی افغانستان سے، جہاں آنے والے زلزلے میں جاں بحق افراد کی تعداد 20 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6.3 تھی اور اس کی گہرائی 28 کلومیٹر تھی۔ اطلاعات کے مطابق زلزلے سے بلخ اور سمنگان صوبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ صوبہ بلخ میں کم سے کم 7 افراد جاں بحق اور 120 زخمی ہو چکے ہیں۔ سمنگان میں زلزلے کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق جبکہ 200 زخمی ہوئے ہیں۔ زلزلے سے صوبہ قندوز میں بھی نقصانات کی اطلاعات ہیں، تاحال اموات کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے افغانستان میں زلزلے سے قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان آزمائش کی اس گھڑی میں افغان عوام کے ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسلم لیگ قائد اعظم کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے چودھری شجاعت حسین سے ان کے بہنوئی جاوید چٹھا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چودھری شجاعت حسین کو داخلی سیکیورٹی کے اقدامات کے حوالے سے بریف کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر وزیر داخلہ کے انتظامات کو سراہا۔ ملاقات میں محسن نقوی اور چودھری شجاعت حسین نے وطن پر اپنی جان قربان کرنے والے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پاکستان کی طاقت اس کی ثقافتی یکجہتی میں ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پشتون کونسل کے زیر اہتمام روایتی رقص کی تقریب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پختونوں کی ثقافت کا پوری دنیا میں منفرد مقام ہے۔ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں شمولیت کی تلقین کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات سے محبت اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ محسن نقوی نے پختون طلباء کے ساتھ مل کر روایتی رقص میں حصہ بھی لیا۔ یونیورسٹی پہنچنے پر وائس چانسلر، اساتذہ اور طلباء نے وزیر داخلہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ مواصلات کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ M6 اور M10 موٹر ویز پر ترقیاتی کام اسی مالی سال کے دوران شروع کیا جائے گا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ان موٹر ویز کی تکمیل کے بعد کراچی پورٹ پورے ملک کے ساتھ براہ راست منسلک ہو جائے گا، جس سے تجارت، لاجسٹکس اور روابط میں نمایاں بہتری آئے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک سے کلائمیٹ ولنریبل فورم کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان کے مجوزہ کلائمیٹ پراسپیرٹی پلان پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جسے آئندہ ماحولیاتی کانفرنس COP3 میں پیش کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ پاکستان کو ماحولیاتی لحاظ سے مضبوط، کم کاربن اور جامع معیشت کی جانب منتقلی کا روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک اور CVF وفد نے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون پر اتفاق کیا۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی سے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے ریکٹر شاہد محمود کیانی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مارگلہ ریلوے اسٹیشن کے گرد و نواح میں ممکنہ ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ مارگلہ اسٹیشن کو ایک جدید عوامی اور کاروباری مرکز کے طور پر ترتیب دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جس سے تعلیمی اداروں خصوصاً نمل کے طلبہ طالبات کو بھی فائدہ ہوگا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک سے پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ ریکڈک منصوبہ پاکستان کی کانکنی میں نئے معیار سیٹ کر رہا ہے۔ ریکڈک سے متصل علاقوں میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے کہا کہ کینیڈین کمپنی بیرگولڈ کامیابی سے ریکڈک پر کام کر رہی ہے۔ یہ منصوبہ دونوں ملکوں کی شراکت داری کا بہترین ثبوت ہے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام رانا مشہور احمد خان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم، سکلز اور پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں پرائم منسٹر انٹرسٹ فری لون پروگرام کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری سوشل ویلفیئر بلوچستان حاجی ولی خان نورزئی بھی تقریب میں موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے تہران میں عالمی مقابلہ حسن کرت میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کم عمر حافظ محمد ابو بکر نے پشاور میں ملاقات کی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے حافظ محمد ابو بکر کو ملک کا نام عالمی سطح پر روشن کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ گورنر نے اس موقع پر کہا کہ قاری محمد ابو بکر کو ان کی بہترین کارکردگی پر وزیر اعظم اور متعلقہ حکام سے انہیں سول ایوارڈ نوازنے کے لیے سفارش کی جائے گی۔ گورنر نے حافظ محمد ابو بکر کو تعریفی شیلڈ بھی پیش کی۔
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने हिदायत की है कि अवामी मफाद के मनसूबों में ताख़ीर का रास्ता रोकने के लिए कानून साजी की जाए। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने सूबे में सनती शोबे की तरक्की के लिए मकामी बिजली घरों से बिजली की तरसील और तकसीम का मनसूबा तैयार करने की भी हिदायत की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने कहा है कि वतन के दिफा के लिए उलमा अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना हैं। गुजरांवाला में अमन, इत्तेहाद और तहफ़्फ़ुज़ वतन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात कौमी इत्तेहाद और यकजहती के मुतकाज़ी हैं। कॉन्फ्रेंस में फ़िरकावारियत के खात्मे, कौमी यकजहती के फ़रोग़ और मजहबी आहंगी पर जोर दिया गया। अटक के तारीखी इलाके मदरोटा में हॉर्स शो का शानदार इनेकाद किया गया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ गिलानी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तफसील जानते हैं मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में। मदरोटा हॉर्स शो खूबसूरती, ताकत और महारत का शानदार मुजाहिरा, जिसमें घुड़सवारी के शौकीन अफराद, माहिर सवार और हजारों शायकीन ने भरपूर शिरकत की। मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों ने शो जंपिंग, ड्रिसाज और इवेंटिंग में शिरकत करके खूब दाद वसूल की। मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि घुड़सवारी नज़्म ज़ब्त, सब्र और हमांगी का दर्स देती है। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि पाकिस्तान के जोश और जज्बे का जश्न है। एक घोड़ों की रवायात एक और भी है। कुछ हैं जो हॉर्स राइडर हैं, कुछ हैं जो घोड़ों का शौक है उनको, तो वो भी एक अच्छा उम्दा ये शौक है। एक जो सबसे ज़्यादा ज़रिया है वो है जो ख़ानदानों को मिलाप करता है, और यहाँ कई ख़ानदान यहाँ तशरीफ़ फरमाए जिनसे मैं बहुत अभी मैं मिला हूँ, और वो पूरे पाकिस्तान से हैं। आला तरबियत याफ्ता घोड़ों और नौजवान सवारों की महारत ने इवेंट को यादगार बना दिया। आज का इवेंट जो है ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक जो हमारी सकाफ़त है घोड़ों से रिलेटेड, ये उनके लिए एक बड़ा नॉलेज वाला इवेंट था। यहाँ पे पूरी दुनिया की नस्ल के घोड़े यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस करवाए गए और दिखाए गए। हमें घोड़सवार बहुत अच्छे लगे, सब घोड़े अच्छे थे, लेकिन जो हमारे फ़ैन हैं वो रहीम नियाजी खान। मदरोटा हॉर्स शो जैसे इवेंट्स न सिर्फ नौजवान नस्ल में जोश जज्बा पैदा करते हैं बल्कि मुकामी सकाफत को भी जिंदा रखते हैं। मदरोटा हॉर्स शो ने न सिर्फ घुड़सवारी के शौकीन को एक दिलकश तजर्बा फराहम किया है बल्कि नौजवान नस्ल में इस रवायती खेल के फ़रोग़ को भी उजागर किया है। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अटक। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती, सरसब्ज मनाजिर और साफ फ़ज़ा की वजह से मशहूर है, लेकिन बढ़ती आबादी और दीगर वजूहात की वजह से शहर को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद वज़ीर। इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफ में किया जाता है, लेकिन जदीद तरक्की के नाम पर तामीराती मंसूबे और ग्रीन बेल्ट्स की जगह कंक्रीट की तामीरात ने इस शहर को जदीद रंग तो दिया, लेकिन इसके कुदरती माहौल को नुकसान भी पहुंचाया है। शहर में फसलों की बकाया जात को जलाना, डीजल पर चलने वाले पुरानी गाड़ियां फिजाई आलूदगी का सबसे बड़ा जरिया करार दी गई हैं। मुरव्वजा कानून के तहत यहाँ दरख्त काटना जुर्म है, लेकिन हर नई तामीरात के लिए दरख्तों की कटाई जारी है। पूरा साल जो आपकी एयर क्वालिटी को इशू खराब करता है वो आपका जो धुआं छोड़ती गाड़ियां और बसें हम जो देखते हैं या जो पर्सनल कार्स होती हैं वो हैं, और उसके बाद जो आपकी सनतें हैं पाकिस्तान में जो जहरीले मादे आपकी हवा में खारिज करती हैं। तो ये डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की डायरेक्शंस के ऊपर हमारी इन्फोर्समेंट टीमें बनी हुई हैं, और हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हम जाके उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। मुल्क भर में तामीराती सरगर्मियों से पैदा होने वाला गर्द व गुबार न सिर्फ सांस की बीमारी में इजाफा कर रहा है बल्कि इस्लामाबाद की साफ फिजा को भी आलूदा कर रहा है। गुज़श्ता 2 सालों में इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुसलसल खराब हुआ है। साल 2023 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 157.62 जबकि साल 2024 में 187.37 रिकॉर्ड किया गया। इस साल 160 से लेकर 178 तक रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे पास ओपीडी के अंदर अक्सर एलर्जी के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आता है। उसमें मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसमें आंखों की खारिश, आंखों से पानी आना, नज़ले ज़ुकाम की शिकायत रहना, नाक का बंद हो जाना। अर्ली मॉर्निंग ये स्मोक और ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर यह है कि आपने अपने वॉक को रिस्केजुअल करके फिर जब अगर थोड़ी सी तपिश ज़्यादा हो जाए और ये थोड़ा सा फिल्टर आउट हो जाए तो फिर आपने अपने वॉक उस वक्त करना है। शहरों में होने वाले तामीराती मंसूबे अगर माहौल दोस्त नहीं होंगे तो एक वक्त आएगा ये जिद्दत मुल्क से इसकी असल पहचान खूबसूरती छीन लेगी। फिजा में जहर बेशक गहरा है मगर हमारी इज्तिमाई कुव्वत से कमजोर है।
जब हर फर्द, माशरा और रियासती इदारे हाथ में लाएंगे तो हम यकीनन अपनी सांसों का हक वापस पालेंगे। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम जारी हैं। स्मोग निगरानी और पेशगी निज़ाम के मुताबिक भारतीय पंजाब के इलाकों लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और होशियारपुर से आने वाली हवाएं लाहौर, कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान की फ़ज़ा को मुतासिर कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक AQI 330 से 360 तक रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने शहरियों को रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 बजे के बाद घर से ना निकलने की हिदायत की है। APA ने आलूदगी फैलाने वाले एक सनती यूनिट को दोबारा सील तोड़ने पर मिसमार कर दिया है और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम फ़ाल कर दिए हैं, जबकि ड्रोन स्क्वाड्स की तैनाती और मोटरवेज के अतराफ 3 किलोमीटर स्मोक फ्री जोन कायम किया गया है। और मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आंधी, जक्कड़ चलने और जालाबारी और गरज चमक के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान वालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर और वस्ती जनूबी इलाकों में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। आज कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो लह -3, स्कर्दू -2, बाबूसर और ज़ियारत में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। मुकाबला दिन 3 बजे शुरू होगा। इकबाल स्टेडियम में सीरीज ट्रॉफी की तकरीबन रनवाई हुई। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और जनूबी अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ब्रेट्सके ने ट्रॉफी की रनवाई की। शाहीन शाह अफरीदी पहली मरतबा वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं। मैच की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने वार्म अप के बाद कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। सीरीज का दूसरा मैच 6 नवंबर और तीसरा मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 11 अप्रैल 2008 को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे मैच था। पाकिस्तान ने इकबाल स्टेडियम में 12 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, जिनमें से 9 जीते और 3 हारे हैं। जनूबी अफ्रीका ने यहां 5 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, 2 जीते और 3 में शिकस्त हुई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान की कप्तानी एजाज है, जिम्मेदारी को बेहतरीन अंदाज में निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि T20 सीरीज की तरह वनडे सीरीज में भी शानदार खेल पेश करेंगे। मेरे लिए ऑनर की बात है पाकिस्तान टीम को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट करना, और अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा फोकस उस पर है कि हमारी जो वनडे क्रिकेट है उसको कैसे बेहतर करना है। एज अ टीम हम काफ़ी उम्मीद है अच्छी परफॉर्मेंस के, और बाबर की लास्ट इनिंग्स थी उससे उसको काफ़ी हेल्प मिली होगी। वो पाकिस्तान के लिए 4-5 सालों से वही परफॉर्मेंस करता आ रहा है, टॉप स्कोरर है T20 का भी, वनडे का भी। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा कल से पाकिस्तान का सरकारी दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। दौरे के दौरान शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में फुटबॉल के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नौजवानों के लिए खेलों के मौक़े में फ़रोग़ और तौसीअ पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद से बलूचिस्तान की साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर नाहिदा खान ने क्वेटा में मुलाकात की। लाहौर कलंदर्स टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मकामी गर्ल्स एंड बॉयज क्रिकेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर राना मशहूद अहमद ने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स को कौमी सतह पर भरपूर मौका फराहम किया जाएगा। खुशी हुई कि मेरिट पर टैलेंट हंट के जरिए क्रिकेटर्स का इंतखाब हुआ। हुकूमत स्पोर्ट्स, तालीम, IT और स्टार्टअप समेत तमाम शोबों में मेरिट की बुनियाद पर नौजवानों को मौका फराहम कर रही है। बहुत शुक्रिया अनीसा आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।